Hello friends, this is Asuni Sadnarjun, and today we are going to start a very important topic under law of tort, that is negligence. If we talk about the term negligence in general sense, then it means carelessness or ignorance by a person. But when we talk about the negligence under law of tort, then it has two senses. First, it is a mental element under various wrongful acts such as defamation, trespass, and nuisance. And in other sense, it is a specific wrong that arises from the breach of duty by a person against another person. So, if we discuss the introduction of negligence, then we can say it is already known that the Indian law of torts is based on the English common law. Thus, the law relating to the negligence is adopted and modified by the courts of India on the principles of justice, equity, and good conscience. And the term negligence has been derived from the Latin word negligentia, which means failing to pick up. जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक अनकोडिफाइड लॉ है और ये डेवलप हुआ है इंग्लिश कॉमन लॉ से। तो हमारे कोर्ट्स जो हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केसेस को जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के आधार पर डिसाइड करते हैं। और जो टर्म नेग्लिजेंस है ये एक लैटिन वर्ड है नेग्लिजेंसिया, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है फेलिंग टू पिक अप, कोई ड्यूटी पूरी करने में फेल हो जाना। अगर हम मीनिंग की बात करें, इन एवरीडे यूसेज इट डिनोट्स केयरलेसनेस। What in its legal interpretation, the word carries two senses in the law of torts. First, negligence as a mode of committing certain torts, such as trespass, nuisance, or defamation. It denotes a mental element. But in another sense, it is an independent tort, which consists of a breach of legal duty to take care which results in damage undesired by the defendant. It means conduct rather than a state of mind. Now we are going to discuss some essential elements for a wrongful act to be a negligence. The first essential element is there must be a duty to take care. Second, the duty must be towards the plaintiff, means dependent has some duty to take care. First thing, the duty must be towards the plaintiff. Second thing, there is a breach of duty. Third thing, and as a result the plaintiff has suffered some damage. There are four essential elements of negligence. First one is duty to take care. We can say when a man does any act and he knows or he has reason to know that it is likely to cause harm to any other person, then he is having a duty to take care against that person. And that duty must be recognized by law, or we can say that duty must be a legal duty, not moral or social duty. For example, if a person driving a vehicle, he must be careful towards other persons who are walking on the road. If a manufacturer manufactures anything for the consumers, then he must take care towards the consumers. If a doctor operating any patient, then the doctor has a legal duty to take care towards the patient.
Now we can say duty to take care arises as soon as there is a reasonable probability of danger from the conduct of the defendant. Or we can say whenever a person starts driving, the duty to take care starts. Whenever a doctor starts operating some patient, the duty to take care towards the patient starts. Now question arises, what type of precaution or what type of care should be taken by the defendant? Whether it is highest level? No. The required standard of care is not the highest possible standard, what the standard of the ordinary average reasonable man if he were placed in the defendant's circumstances. अब हमको कितनी केयर करनी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक प्रूडेंट पर्सन उस पोजीशन में कितनी केयर करता, उतनी ही आपको करनी है. The degree of care which a man is required to use in a particular situation varies with the obviousness of the risk. If the possible danger is great, great care is required. If possible danger is slight, slight degree of care is required. अब कितनी केयर करनी है ये इस बात पे भी निर्भर करेगा कि खतरा कितना है. अगर ज्यादा खतरा है तो ज्यादा केयर करने की जरूरत है, कम खतरा है तो कम केयर करने की जरूरत है. The care that will be required of them will be the care that an ordinary prudent man is bound to exercise. The prudent man is the man who has acquired the skill to do the act which he undertakes. A person who professes to have a special skill or who have voluntarily undertaken a higher degree of duty are bound to exercise more care than an ordinary prudent man. कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई स्किलफुल पर्सन है तो उसकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है. जैसे अगर कोई पर्सन घायल है, एक्सीडेंट हो गया है, और एक अगर नॉर्मल पर्सन उसकी केयर करता है तो उसका केयर करने की डिग्री अलग होगी, और अगर कोई स्किलफुल डॉक्टर उसकी केयर करेगा तो उसकी डिग्री अलग होगी. कभी कभी क्या होता है कोई पर्सन खुद अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि वो ज्यादा केयर करे. जैसे भीड़ में से अगर कोई पर्सन ये कह दे कि वो एक डॉक्टर है, आप लोग हट जाइए मैं देखता हूं, मीन्स अब बाकी लोगों से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो गई. एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस वाज गिवन इन अ लीडिंग केस, दैट इज डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन. In this case, a man bought a bottle of ginger beer from a retailer and gifted it to his lady friend. The bottle contained the decomposed remains of a snail, and the bottle was opaque. Opaque means the bottle was not transparent, so that the noxious substance could not have seen and was not discovered until the lady was refilling her glass. After that, that lady became ill, and that lady filed a suit against the manufacturer. Now, a very technical and interesting question arises in this case. The defendant took a plea that he has no duty towards the plaintiff, because plaintiff is not a person who bought the bottle, and defendant is not a person who sold the bottle. And there is a concept under Indian Contract Act, that is privity of contract. According to concept of privity of contract, a person is not allowed to get the compensation if he or she is not a party to the contract. Court accepted the plea of defendant and said, yes, you are right that you have no liability towards the plaintiff under law of contract. What? You have a liability
towards the plaintiff under law of tort in negligence. Because you are a manufacturer and plaintiff is a consumer, and manufacturer has always a duty to take care towards the consumers. So in this case, the defendant pleaded that he did not owe any duty of care towards the plaintiff. The plaintiff was a stranger to the contract and her action was therefore not maintainable due to privity of contract. But all these defenses were denied and defendant held liable for negligence. And in this case, it was held that the consumer had no cause of action in contract against either retailer or manufacturer because it was she who consumed the bottle but did not buy the bottle. But court observed that her claim arose in tort, in negligence, and the breach of a duty of care owed to herself as a consumer. And court observed that in this case, you must take reasonable care to avoid acts of omission which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor. A principle of never was propounded in this case, and it was observed by the court that if you are aware or you have any reason to know that due to the act or omission other person may be caused any harm, then you must have a duty towards that person to take care, and that person is a neighbor. Question arises, who is neighbors or who are neighbors? Court further said that neighbors are the persons who are closely and directly affected by my act, that I ought reasonably to have them in contemplance which are called in questions. So we can easily say that any person may be our neighbor if we know that or we are having reason to know that by the act or omission any person may cause harm or any person may be affected or any person may be affected by closely and directly of our acts or omissions, then those persons are called neighbors. दोनों वर्सेज स्टीवेंसन एक बहुत ही लीडिंग केस है जिसमें कि नेग्लिजेंस के लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया. ये कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है इबी जसीबी रिमेडियम पे. इफ देयर इज राइट देयर इज रेमेडी. इस केस में एक पर्सन ने एक जिंजर बियर का बॉटल खरीदा और अपनी लेडी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया. उस लेडी फ्रेंड ने जब उसको यूज किया तो वो बॉटल जो थी वो नॉन ट्रांसपेरेंट थी, तो वो नहीं देख पाई कि अंदर क्या है. जब ग्लास में डाल के उसने एक दो बार उसको पिया तो बाद में उसमें एक डिकम्पोज स्नेल निकला जिससे वो बीमार पड़ गई. उसने केस फाइल किया मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट. मैन्युफैक्चरर ने प्ली ली कि इसका तो राइट ही नहीं बनता मेरे अगेंस्ट, क्योंकि ना तो इसने बॉटल खरीदी है ना ही हमने बॉटल बेची है. और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता. लेकिन कोर्ट ने कहा कि हाँ ये बात सही है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता है बट टॉल्ट में कर सकता है, क्योंकि टॉल्ट में आप मैन्युफैक्चरर हो, ये कंज्यूमर है और हर मैन्युफैक्चरर की एक ड्यूटी होती है टेक केयर करने की टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स. और कोर्ट ने आगे ये कहा कि अगर आपको ये पता है या ये पता करने का आपके पास रीजन है कि आपके एक्ट या ओमिशन से आपके पड़ोसी को हार्म हो सकता है तो आपको उसकी देखभाल करनी होगी, टेक केयर करनी होगी. अब पड़ोसी कौन है? इन्होंने बताया कि ऐसा हर पर्सन जो आपके एक्ट या ओमिशन से अफेक्टेड हो सकता है, वो आपसे क्लोजली या डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ है आपके किसी भी एक्ट से या हो सकता है, तो वो पड़ोसी है आपका. Now, the second essential element is duty towards the plaintiff. The duty must be towards the plaintiff.
Mere carelessness on the part of defendant is not enough unless it is shown that such duty owed to the plaintiff. If a defendant owe no duty to the plaintiff, he cannot sue even though he sustained injury. आपको ये प्रूव करना होगा कि ड्यूटी प्लेंटिफ की तरफ थी. अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि प्लेंटिफ की तरफ ड्यूटी थी, तो चाहे आपको कितनी भी इंजरी हो, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा. एक केस हुआ था वोरिल वर्सेस यंग का. इस केस में क्या हुआ था, एक लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी, उससे काफी दूर पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी आवाज उसने सुनी, और जब ये उस प्लेस पे पहुंची तो तब तक बॉडी तो हटाई जा चुकी थी, लेकिन वहां पे ब्लड पड़ा हुआ था. उसे देख के ये बहुत ज्यादा नर्वस शॉक में आ गई और इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई. इसने बाद में केस फाइल किया. तो कोर्ट ने यही कहा कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें ड्यूटी इसकी तरफ नहीं थी. जैसे आप मान लीजिए अगर कोई पर्सन गाड़ी चला रहा है, तो भाई हम कहां तक प्रिज्यूम कर सकते हैं, हम यही तो प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें ध्यान रखना है कि हमसे एक्सीडेंट ना हो, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जिससे हमारा एक्सीडेंट होगा उसकी तरफ हमारी लायबिलिटी होगी. लेकिन हम ये तो प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं कि जिससे एक्सीडेंट होगा उसकी तो लायबिलिटी अलग की बात है. कोई एक लेडी होगी जो उस एक्सीडेंट की आवाज सुन के डर जाएगी या वहां पे ब्लड देख के डर जाएगी, उसको भी हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा. तो कोई भी इसको प्रिज्यूम नहीं कर सकता है. तो कोर्ट ने यही कहा कि उसकी ड्यूटी जो है वो लेडी की तरफ नहीं थी. ब्रीच ऑफ ड्यूटी. थर्ड इसेंशियल एलिमेंट हमने क्या देखा था, ड्यूटी होनी चाहिए टेक केयर की. दूसरा, ड्यूटी किसकी तरफ होनी चाहिए, प्लेंटिफ की तरफ होनी चाहिए. तीसरा, अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो. ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन्स नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर विच इज रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर सिचुएशन. What standard of care is required? It is that of reasonable man or an ordinary prudent man. For this following things are considered. अब हमको कितनी केयर करनी है ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक प्रूडेंट पर्सन कितनी केयर करता है. और केयर जो है वो कई बातों पे डिपेंड करती है कितनी केयर करनी है. पहली चीज तो इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन्ड, कि हम किस ऑब्जेक्ट को अटेंड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि केयर कितनी करनी है. जैसे मान लीजिए अगर हम एक आटे की बोरी कहीं ले जाते हैं, हमसे कहा गया है कि एक आटे का बोरा जो है या बोरी जो है इसको आप वहां पहुंचा दो, तो हमारी केयर का जो डिग्री होगा वो अलग होगा. लेकिन हमसे कोई कहे कि ये डायमंड रिंग आप कहीं पहुंचा दो, डायमंड रिंग की केयर हमें ज्यादा करनी पड़ेगी. अगर हमारे साथ कोई 20 साल का आदमी भेजा जाता है कि इसको ले जाओ घर पे छोड़ दो, तो हमारा केयर का तरीका अलग होगा. लेकिन हमारे साथ कोई 4 साल का बच्चा भेजा जाता है तो हमारी केयर का तरीका अलग होगा. ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क कितना है. जितना ज्यादा खतरा होने का चांस होगा उतनी ज्यादा केयर भी करनी होगी. मान लो किसी चीज की केयर हमें घर पे करनी है सुरक्षा, तो हमारी केयर अलग होगी. किसी चीज की सुरक्षा हमें रोड पे करनी है, अलग केयर हो जाएगी. और किसी चीज की सुरक्षा हम ऐसे टाइम पे कर रहे हैं कि रात का टाइम है और सुनसान सड़क है, केयर ज्यादा हो जाएगी. और केयर कितनी करनी है इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हमने कंसिडरेशन कितना पे किया. जैसे एक कॉफी अगर हम एक नॉर्मल जगह पे पी रहे हैं 20, 25, 30, 40 रुपए की, और एक कॉफी जो है हम कहीं अच्छी जगह पे पी रहे हैं 1000, 2000 रुपए की हमको पड़ रही है, तो जितना ज्यादा हम कंसिडरेशन दे रहे हैं केयर भी उतनी ही ज्यादा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. एक केस हुआ रमेश कुमार नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में एक पोस्ट ऑफिस था, अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी कि उस पोस्ट ऑफिस की मेंटेनेंस करें. उन्होंने अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं की, लोग इंजर्ड हो गए, तो इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए उनको लायबल बनाया गया. उनसे कहा गया कि आप कंपनसेशन दीजिए. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती का केस इस पे खूब पूछा जाता है. इस केस में जो चांदनी चौक में एक क्लॉक टावर था, उसको भी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी किसकी थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी. उन्होंने ये ड्यूटी पूरी नहीं की, वो टावर गिर गया, कई लोगों की डेथ हो गई. यहाँ भी लायबिलिटी दी गई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कहा गया कि आप कंपनसेशन दीजिए. लास्ट डैमेज होना चाहिए.
लेकिन डैमेज जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डैमेज जो है वो उसका रिमोट कॉज हो। अगर जैसे उस केस में हुआ था कि उस लेडी को डैमेज तो हुआ ब्लड देख के, लेकिन वो रिमोट कॉज था। जैसे एक केस है, मान लीजिए, देखिए कि जैसे कोई एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की आवाज सुन के एक पास में हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में नर्स थी, नर्स के हाथ में बच्चा था। अब उस एक्सीडेंट की आवाज से वो डर गई, उसके हाथ से बच्चा छूट गया, उसने कंपनसेशन के लिए केस फाइल किया, एक्सीडेंट हुआ उनसे। कोर्ट ने कहा कि ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही रिमोट कॉज है। तो जो डैमेज होगा वो तभी कंपनसेशन मिलेगा जब जब वो एक इमीडिएट और डायरेक्ट इफेक्ट हो, उसका रिजल्ट हो। अगर रिमोट का मतलब होता है दूर, दूर का अगर इफेक्ट है तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। फाल्स्टाफ वर्सेस लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कंपनी का एक ये केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन जो है वो ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन चल रही थी, वो चढ़ नहीं पा रहा था। तो उसकी हेल्प के लिए कुछ रेलवे के एम्प्लॉय आ गए। एक ट्रेन के अंदर था, वो उसको खींचने लगा। एक प्लेटफॉर्म पे था, वो उसको पुश करने लगा। इसके हाथ में एक थैला भी था, एक बैग था। उसी समय वो बैग इसका गिर गया, उसमें कुछ विस्फोटक थे, वहां पे कोई विस्फोट हुआ और दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन खड़ा था, उसकी इंजरी हुई। उसने केस फाइल किया, तो कोर्ट ने यही कहा कि ये रिमोट डैमेज है और आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जोसेफ वर्सेस डॉक्टर जॉर्ज मूजली के केस है। इसमें केरला हाई कोर्ट ने जो है एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस के लिए, उसने गर्ल को एनेस्थीसिया भी नहीं दिया था और ऑपरेट कर दिया, तो डॉक्टर के अगेंस्ट में माना गया कि ये उसका डायरेक्ट कॉज है और उसको 1,60,000 का कंपनसेशन दिलाया गया। तो ये केसेस और भी हो सकते हैं, फैक्ट्स हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें आपको ध्यान रखना है नेग्लिजेंस में, कि नेग्लिजेंस का पूरा लॉ जो है वो डेवलप हुआ डोनो वर्सेस स्टीवेंसन में। नेग्लिजेंस के लिए ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी प्लेंटिफ की तरफ होनी चाहिए, उस ड्यूटी की ब्रीच होनी चाहिए और डैमेज होना चाहिए। डैमेज जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट होना चाहिए उसके एक्ट का, रिमोट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा नेग्लिजेंस का। कुछ और कॉन्सेप्ट बचते हैं नेग्लिजेंस में, जैसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, रेसिप्शल ऑक्यूटर है, नर्वस शॉक है। छोटे छोटे टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम डील करेंगे। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तुरंत डिलीट कीजिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।